very good morning and Janera and all of you. I hope you all are well and I hope you all are following the rules of our SMS. So students, in the previous class we had studied the lesson keyboard and mouse, and in that we studied what is a keyboard. So students, a keyboard is input device used to type data, and we also studied the different types of keys in a keyboard like alphabet key, number key and the special key. So today we will continue the same topic, different types of keys in a keyboard. So let's start with the toggle key. So students, a toggle key is used to turn a function on and off, and pressing a toggle key once activate the function and pressing it again deactivate the function. It means we have to press a toggle key one time, the function is activated, like function is on, and we press again it, so the function is deactivated, like function is off. Okay, so the most common toggle key on a keyboard are numlock key and the caps lock key. So let's start with the caps lock key. So caps lock key, this key is used to type the letter in capital. To use the caps lock key, press it once and its indicator light turns on, which means that the caps lock key is ready to use. It means this key is used for type a letter in a capital. We can press the caps lock key one time. The caps lock button is on and we have to type the letter in a capital, and it indicates lights turn on in your keyboard and the middle and the right side. If you have at home, if you have keyboard at home, you can see it. The right side of a keyboard are three lights. So if you all the press caps lock key one time, so the light is turned on, which means that the caps lock key is ready to use. जब आप caps lock key का बटन प्रेस करते हैं वन टाइम, ओनली वन टाइम, तो आपका कीबोर्ड के राइट साइड में जो इंडिकेटर होता है वो ऑन हो जाता है, वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और वो लाइट या तो आपके कीबोर्ड पे रेड कलर की शो होंगी या ब्लू कलर की. तो जब वो लाइट ऑन हो जाती है, इट मीन्स आपका कैप्स लॉक की रेडी है आपको वर्क करने के लिए. आप कैप्स लॉक की से कैपिटल लेटर्स टाइप कर सकते हैं, एंड देन you press again the caps lock key, the indicator is off. It means अब आप कैपिटल में नहीं, स्मॉल वर्ड में आपके वर्ड्स लिखने स्टार्ट हो जाएंगे जब आप कोई भी लेटर्स प्रेस करेंगे. ओके, दिस इज अ कैप्स लॉक की. दिस इज द यूज ऑफ अ कैप्स लॉक की. सो नेक्स्ट इज
the num lock key. So what is the use of a num lock key? The num lock key means numeric lock to enter numbers using the numeric keyboard. Press the num lock key. This is a num lock key and you can press it, the num lock key, in your keyboard. आप कीबोर्ड के साइड में जब आप देखेंगे कि न्यूमरिक कीपैड होगा जहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे, वहाँ पे एंटर की एंड द प्लस माइनस कीज होंगे, वहाँ पे एकदम ऊपर के साइड में आपको नम लॉक की शो हो रहा होगा. यू कैन सी इन द स्क्रीन. जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका इधर की जो कीपैड है, न्यूमरिक कीपैड है, वो लॉक हो जाएगा. इट मीन्स जब ये नम लॉक की प्रेस रहेगा तो आप इधर के कीपैड से कोई भी बटन, कोई भी कीज यूज़ नहीं कर सकते, प्रेस नहीं होगा, कोई भी वर्ड एंटर नहीं होगा. जब आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके नंबर्स वहाँ पे एंटर होना शुरू हो जाएंगे. दिस इज़ अ नम लॉक की. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ अ navigation key. So students, these are the navigation key. So what is the mean of a navigation? These keys control the cursor movement, which is why these are called cursor movement keys. It means it is a cursor keys. Like आप माउस के थ्रू, माउस के स्क्रॉलर के थ्रू जो आप अप्स एंड डाउन्स करते हैं पेज में, फर्स्ट पेज पे जाते हैं, द लास्ट पेज पे, या आप किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में अप्स एंड डाउन करते हैं, वो आप माउस के स्क्रॉलर के थ्रू करते हैं. सो आप कीबोर्ड के थ्रू भी नेविगेशन कीज़ के थ्रू अप्स एंड डाउन्स एंड मूव करा सकते हैं. एंड में, पेज के एंड में, पेज के स्टार्टिंग में, एंड द एरो की के थ्रू आप किसी पर्टिकुलर होम पेज पे आप अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं. सो टाइप्स ऑफ नेविगेशन कीज आर लाइक इंसर्ट की, डिलीट की, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, एंड द एरो कीज. दीज आर द नेविगेशन कीज. सो स्टूडेंट्स, लेट्स we know about the what is the use of these navigation key for the detail. So first is a arrow key. These keys are used to move the cursor up and down, left or right on the screen. It means आपकी arrow key का use होता है आपके screen पे. It means monitor पे आपको अप जाने के लिए, डाउन आने के लिए, एंड द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड. जैसे कि आप अपने माउस के थ्रू अप्स एंड डाउन करते हैं, आपकी कर्सर्स अप्स एंड डाउन होते हैं. सिमिलरली एरो की का भी यूज़ आपको ऊपर की तरफ पेज में जाने के लिए, नीचे की तरफ, एंड द राइट एंड लेफ्ट जाने के लिए यूज़ होता है. तो दिस इज़ द एरो की. जिस साइड की एरो की है, यानी this key is the up key and this key is a down key, this key is a left key, and this key is a right key. Okay student, so these are keys. These keys are used to move the cursor up, down, and the left, right. Okay students, so the next is a home key. So to move the cursor to the beginning of the line, pressing Ctrl plus Home moved the cursor to the beginning of the page. It means home की का यूज़ किया है कि आप अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिखे हैं, कोई आपने फाइल क्रिएट की है और उस फाइल में आपके 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस हैं. इफ़ आप एंड पेज पे हैं और आपको तुरंत क्विकली होम पेज यानी अपने फर्स्ट पेज पे जाना है, तो आप होम की का यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल की.
In the previous class, I am also told you the control key is a special key and control key other keys के हेल्प से मूव करता है. So यहाँ पे आप कंट्रोल की के साथ होम की प्रेस करेंगे तो आप क्विकली अपने फर्स्ट पेज पे यानी पेज के बिगनिंग पे आप पहुँच जाएंगे. आपका कर्सर बिगनिंग पे होगा जब आप होम की का यूज़ करते हैं. इट मीन्स आपके अगर फाइल में 4 या 5 की पेजेस हैं तो आपको तुरंत आपको हर पेजेस से होके ना जाना हो, क्विकली आपको फर्स्ट पेज पे जाना है तो यू कैन यूज़ द होम की. ओके, एंड दिस इज़ द एंड की. सिमिलरली एंड की यूज़ से आप अपने पेज के एंड पे क्विकली जा सकते हैं. टू मूव इट मूव्स टू द एंड ऑफ द लाइन. मतलब आपके जो पेज की एंड है, लाइन की एंड. इफ़ अगर आपने 1 पेज ही टाइप किया है तो आप कंट्रोल के साथ एंड को प्रेस करेंगे तो आप क्विकली आप लास्ट लाइन पे पहुंच जाएंगे, यानी एंड ऑफ द पेज. पेज के एंड में जो आपकी लास्ट है, जो आपका लास्ट फुल स्टॉप होगा, लाइक जैसे आपका यहाँ पे पेज दिया हुआ है, लाइक ये जो पेज आपका दिया हुआ है इस एंड पे आपने यहाँ से स्टार्टिंग करी और आपने यहाँ पे एंड किया. तो दिस इज अ यूज ऑफ अ एंड की एंड यू कैन यूज द कंट्रोल प्लस एंड. कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे तो आप आपका कर्सर मूव करेगा एंड पेज पे. So this is the end key. And next is a page up and the page down key. So to move the cursor to upward direction from the page to the previous page. आपके पेज को अगर आप स्क्रॉलिंग के थ्रू माउस का यूज़ कर रहे हैं, आपको पेज के ऊपर जाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको जाना है, तो यू कैन यूज़ द पेज अप की. एंड आपको अगर डाउन की डायरेक्शन में जाना है, डाउनवर्ड जाना है, तो यू कैन यूज़ द पेज डाउन की. तो टू मूव, जैसे आप एरो कीज़ के यूज़ से अप जाते हैं एंड द डाउन जाते हैं, सिमिलरली सेम वर्क आपका पेज अप एंड पेज डाउन की का है. It moves the cursor to downward direction from the one page to next the page. Next page पे आपको जाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इफ़ आपके जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए उसमें 2 या 3 पेजेस हैं, नेक्स्ट पेज पे डाउनवर्ड जाना है तो यू कैन यूज़ द पेज डाउन की. एंड देन आपको अपवर्ड जाना है तो यू कैन यूज़ द पेज अप की. ओके, सो दीज आर द यूजेस ऑफ द पेज अप की एंड द पेज डाउन की. आपको पेज में ऊपर और नीचे जाने के लिए इट मीन्स नेविगेट करता है या आपको पेज में कहाँ पे जाना है और आपको ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ, तो नेविगेट करता है. ये कीज़ आपको नेविगेट करती है. सो दिस इज तो इस वजह से इसे हम नेविगेशन की कहते हैं. ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट इज where does the navigation keys are present. So first of all आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका नेविगेशन कीज़ आपके स्क्रीन पे, आपके कीबोर्ड पे कहाँ पर प्रेजेंट होता है. सो द होम एंड पेज अप, पेज डाउन की आर प्रेजेंट above the arrow key on the keyboard. So this is your arrow key. You can see in the picture. This is your arrow key and arrow key के above ऊपर की साइड में आपको ये सारे नेविगेशन कीज आपको शो होंगे. And these keys are also available on the numeric keypad. ये कीज आपके न्यूमरिक कीपैड के पे भी अवेलेबल हैं. ओके, so this is a navigation keys. Okay students, so I hope you all are understood that the what is a toggle key and the what is a navigation key. So last I provide you a small assignment you have to do in your copy, and I'm also provide you a answer key. But first of all you have to do yourself in your copy and you can check. After that you can check it with the answer. Okay, so thank you students and have a nice day. Stay home, stay healthy, stay safe. Thank you.